So we'll start with next chapter today, which is magnetism. But before we start magnetism, आपको basics पता होना चाहिए. And also, if you look at the sequence of chapters in your book, physics part 2 में पहला ही chapter था electrostatics. And if you remember, in case of electrostatics, याद तो है, पता भी है, electro मतलब charges, statics मतलब at rest. So you study physics related to charges at rest. And what we have studied so far, force between two charges, electric field एक charge का एक point पे. Then what we have seen is potential energy. Then what we have seen is potential, electrostatic potential. तो जब भी charges की बात होगी, whenever you talk about charges, you will basically study charges under two different scenarios. उसमें से एक है when charges are at rest, which is nothing but electrostatics. Then when charges are moving, when charges move, you have two more things. When you have moving charges, you remember rate of flow of charge, how much charge is flowing per unit time, इसको आप क्या बोलते हो? Current. So if charges are moving, two things happen. One is you have current, and you talk about current electricity, जो हमने electrostatic के बाद के chapter में देखा था, electric current through conductors. Or you may have magnetism. Basically, I will call this as magnetic effects. या फिर magnetism भी बोल सकते हो. अब when you talk about magnetic effects, यहाँ पे इसके दो सब कैटेगरीज आएंगे. एक है टेम्पररी मैग्नेट्स, एक है परमानेंट मैग्नेट्स. So you will have either temporary or permanent. तो टेम्पररी मैग्नेटिज्म, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट मतलब करंट गया तो मैग्नेटिक इफेक्ट गया, या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट. दूसरा है परमानेंट. परमानेंट मतलब magnetic properties are always there irrespective of you pass current or if you don't pass current. Example, तो मार्केट में 10-15 रुपए का मिलता है. You must have seen this. हमारे पास से दो एक्स शेप्ड मैग्नेट्स आजकल बहुत ट्रेंडिंग है ना. ट्रेंडिंग, राइट? You see a lot of people playing with this kind of magnets. These are permanent magnets. तो यहाँ पे करंट पास किया था कि हमने नहीं, फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था. सो इसका कुछ और ही स्टोरी है. व्हाई इट इज कॉल्ड एज मैग्नेट? बिकॉज यू नो देयर इज अ प्लेस इन यूरोप कॉल्ड एज मैग्नेशिया, सिटी का नाम है. वहां पे माइनिंग करते वक्त ब्लैक मटेरियल मिला जो आयन को अट्रैक्ट कर रहा था, तो वहां से उसका नाम आ गया मैग्नेट. सो इट कम्स फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड एज मैग्नेशिया. तो you have either temporary magnetism or you have permanent magnetism. अब temporary magnetism में दो टाइप आते हैं, diamagnetism and paramagnetism. Diamagnetism and paramagnetism, both have temporary magnetism, and in permanent you call this as ferromagnetism. Ferromagnetic substances जैसे iron is ferromagnetic in nature. Diamagnet, air, right? तो डिटेल्स, ये सारे डिटेल्स आपको 12th में होंगे. Why some materials are temporary magnets, why some materials are permanent magnets, why some materials are ferromagnets, right? ये सब हम 12th में देखेंगे इन डिटेल. 12th में देखेंगे. सो नाउ
In this chapter, which is called as magnetism, you will be studying only properties of a magnet. तो बेसिकली यू शुड नो, साइंस नॉर्मली प्रोग्रेस ऐसे ही होता है कि आप पहले कुछ ऑब्जर्व करते हो, फिर आप उसको डिटेल स्टडी करते हो, फिर आप जाके बताते हो कि अरे ऐसा हो रहा होगा इसलिए ऐसा प्रॉपर्टी हमने देखा. तो यू ऑलवेज स्टार्ट विथ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड फेनोमेना, दैट इज यू ऑलवेज स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज. तो हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे, बट दिस इज जनरल पिक्चर. बिफोर यू स्टार्ट एनी चैप्टर, कोई भी चैप्टर चालू करने से पहले पता होना चाहिए व्हाट इज ओवरऑल सिनारियो. चार्जेस मे बी इधर एट रेस्ट, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. यहाँ पे फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करोगे, फोर्स फाइंड करोगे, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करोगे, सो ऑन सो फोर्थ. इलेक्ट्रिक डायपोल की बात होगी, और चार्जेस आर मूविंग. इफ दे आर मूविंग देन टू सिनारियोस, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड्स की बात करोगे या तो करंट्स की बात करोगे. अब करंट मतलब क्या, बेसिकली यू विल टॉकिंग अबाउट रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर रजिस्टर्स का कलर कोडिंग, वो सारा का सारा जाता है. पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, वो सब जाता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में. एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट या फिर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, दैट इज रिलेटेड टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड बाय करंट, राइट. तो टेम्पररी मैग्नेटिज्म भी आता है, देन परमानेंट है, सो ऑन सो फोर्थ, वी विल सी दैट लेटर. तो अब एज आई टोल्ड यू, हमारा फोकस है मैग्नेटिज्म पे, लेकिन ओनली ऑन प्रॉपर्टीज फॉर द टाइम बीइंग, राइट. 12th में हम देखेंगे बाकी डायमैग्नेटिज्म, पैरा, फेरो, सब डिटेल्स में देखेंगे बाद में. नाउ बिफोर यू गो अहेड विथ प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म, मतलब मैग्नेटिज्म चैप्टर चालू करने से पहले प्री रिक्विजिट, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का डाइपोल से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट. तो अगर आपको याद होगा, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक कॉन्सेप्ट देखा था विच वाज कॉल्ड एज, आई मीन ऑफ कोर्स, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by finite distance is called as electric dipole, plus q and minus q, right. तो आपके पास equal but opposite charges है. Good. Then a line passing through centers of both the charges is called as axis of dipole. ये सेंटर है, ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, तो टोटल डिस्टेंस था 2L. A line passing through center of dipole but perpendicular to dipole, a line passing through center of dipole perpendicular to axis is called as equator of dipole. तो पहले ये अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिज्म के साथ भी ऐसे ही कुछ रिलेटेड प्रॉपर्टीज थे, राइट, है, मतलब वो देखना है. देन गोइंग वन स्टेप अहेड, इफ यू रिमेंबर, अगर आपको याद होगा, हमारे पास अगर एक प्लस क्यू चार्ज है और अगर इसके नियर बाय रीजन में हमने और एक चार्ज रख दिया, वो भी पॉजिटिव है, तो क्या होगा? रिपल्शन होगा. मतलब प्लस क्यू चार्ज विल रिपेल that positive charge और वो positive charge will repel this charge. अगर ये जो सेकेंड चार्ज मैंने लिया, if it happens to be +1 कूलम, तो as you said, अभी आपने बताया ना कि एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा? फोर्स ऑफ रिपल्शन, करेक्ट. अगर दूसरा चार्ज, टेस्ट चार्ज, वो आपने +1 कूलम कर दिया, तो फोर्स को नया नाम देते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 1/4πε0 q1 q2 by r², where r is distance from center to center. लेकिन अगर दूसरे चार्ज को आपने +1 कूलम कर दिया, तो उसी फोर्स को बोलोगे इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपको याद होगा, 1/4πε0 q1 q2 by r², दिस इज कूलम्बिक फोर्स. अब अगर मैंने सेकेंड चार्ज को कर दिया +1 कूलम और पहले चार्ज को बोल दिया Q, तो इसी को नया नाम है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर?
एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. अब यू हैव सेड टू थिंग्स. एक तो ये रिपल्सिव फोर्स है, मतलब +1 कूलम विल बी रिपेल्ड बाय +q चार्ज. गुड. और आपने बोला कि वो फोर्स को हम बोल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. वेरी गुड. तो पहले तो ये पता होना चाहिए. नाउ द डायरेक्शन along which this +1 कूलम चार्ज मूव्स, और बुक में ऐसा +1 नहीं लिखा होता है, यूनिट पॉजिटिव बोलते हैं इसको. यूनिट मतलब 1, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव. तो द डायरेक्शन along which यूनिट पॉजिटिव चार्ज मूव्स, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ फोर्स. तो कहां जाएगा ये? अवे जाएगा. तो इसको बोलोगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स. द डायरेक्शन along which unit positive charge moves when placed in the vicinity of some other charge is called as electric line of force या फिर electric field line. तो very very obvious, very very obvious ऐसा है, हर एक डायरेक्शन में अवे जाएगा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज यू ऑलवेज शो रेडियली आउटवर्ड्स. तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज, रेडियली आउटवर्ड्स, अवे मतलब बेसिकली. अब imagine that you have instead of positive you have negative. तो क्या होगा इस केस में? अट्रैक्शन होगा, मतलब दिस चार्ज विल मूव टूवर्ड्स. तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस विल बी इनवर्ड्स, रेडियली इनवर्ड्स. वेरी गुड. नाउ व्हाट हैपेंस if I have 1 plus q and 1 minus q. तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और एक इक्वल नेगेटिव चार्ज है, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल. पता है आपको, ये अभी भी बताया मैंने. तो व्हाट हैपेंस इन दिस केस? प्लस q will repel and minus q will attract. The path along which unit positive charge moves is called as electric field line again. And इसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पहले ही प्रॉपर्टी में लिखते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. प्रॉपर्टी नंबर 1. प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्यों? क्योंकि एक चार्ज क्या है? +1. तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, मान लो आई वांट टू फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, tangent. तो tangent drawn to electric field line at a given point gives direction of electric field and electric force. तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? द tangent drawn कहां पे? at any point. किसको? to the electric field line gives direction of electric field at that point. ये दूसरा पॉइंट. राइट? क्लियर? नंबर 3, मतलब इसी का सब पॉइंट बोल सकते हो. आपको ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. क्यों नहीं? क्यों? अगर इमेजिन अगर कर रहे होते, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे होते, तो होगा क्या? उस गिवन पॉइंट पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे बेसिकली 2 टेंजेंट आ गए. इसका मतलब एक ही पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 डायरेक्शंस है, जो होता नहीं है. यू विल हैव ओनली 1 डायरेक्शन एट एनी पॉइंट. देन अगर आपको याद होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालना है, इफ यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, उससे पहले तो समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ निकालने से पहले लुक एट अ लार्जर पिक्चर. मतलब बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखते कैसे है. थोड़े से ज्यादा लाइंस ड्रॉ करेंगे तब समझिएगा. तो दे लुक समथिंग लाइक दिस.
दिस इज हाउ दे विल लुक लाइक. ऑफ कोर्स दे आर नॉन इंटरसेक्टिंग. कहीं पे गलती से इंटरसेक्टिंग दिख जाए तो फिर समझ लेना कि वो गलती है, इट्स अ मिस्टेक. जस्ट इमेजिन, राइट. नहीं, ऑब्वियसली मुझे एरो हेड चेंज करना पड़ेगा, तो नहीं तो बोलोगे नेगेटिव से स्टार्ट हुआ. नहीं, नेगेटिव से नहीं स्टार्ट हुआ, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, नेगेटिव पे खत्म हुआ. और यहाँ पे भी ऐसा ही होगा. तो दिस इज व्हाट यू हैव, राइट. देन और एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है एट अ पॉइंट. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करने के लिए व्हाट यू डू इज आप पॉइंट ले लो. जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ फाइंड करना है वो पॉइंट ले लो. वहां पे आप एक एरिया ड्रॉ कर दो. थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, लेट्स ड्रॉ लिटिल बिगर. ओके. और इस गिवन एरिया में से इस एरिया को नॉर्मली मतलब परपेंडिकुलरली कितने लाइंस पास हो रहे हैं उसको बोलते हो आप फ्लक्स. और ये फ्लक्स आपको बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना है उस पॉइंट पे. तो बेसिकली strength of electric field at a given point depends on crowding of field lines. So important part, field lines are crowded when you take a point near to the charges and they are widely separated. अगर वही एरिया में ये सेम एरिया अगर मैं यहाँ ले लेता हूँ तो यहाँ पे लेस क्राउडेड है, मतलब वाइडली सेपरेटेड है, मतलब यहाँ पे फील्ड का स्ट्रेंथ कम होगा, राइट. अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ही है. अब हमको जाना है, ट्रांजिशन करना है. कहाँ जाना है? मैग्नेटिज्म में. तो एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट यू हैव इन मैग्नेटिज्म. तो नाउ वी कैन स्टार्ट विथ नेक्स्ट चैप्टर विच इज मैग्नेटिज्म. अब जैसे आप यहाँ पे डाइपोल की बात करते हो, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस. यहाँ पे when you take a bar magnet मतलब a magnet in rectangular form, you have in this case जैसे यहाँ पे दो पोल्स हैं, यहाँ पे भी दो पोल्स है, एक है नॉर्थ पोल, एक है साउथ पोल. ओनली वन डिफरेंस, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आपको सिर्फ पॉजिटिव चार्ज चाहिए था तो पॉसिबल था, मतलब उसको बोलते हैं मोनोपोल, सिंगल पोल. तो you can actually have only one pole, सिर्फ पॉजिटिव चार्ज, सिर्फ नेगेटिव चार्ज. यहाँ पे नहीं हो सकता. यहाँ पे मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब आपने सोचा भी कि सिर्फ नॉर्थ पोल से ही नहीं बनेगा. अगर आप बोलोगे नहीं मैं इसके दो टुकड़े करता हूँ, हाँ कर दो, तो भी नहीं होगा, क्योंकि ये साउथ बन जाएगा, ये नॉर्थ बन जाएगा. फिर और पीसेस करोगे, करते रहो. हाँ, तो मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट. इट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पेयर. ये आपको पता होना चाहिए, नंबर 1. नंबर 2, जैसे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, वैसे इन केस ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल विथ वन स्मॉल चेंज. अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कहीं पे भी हमने फील्ड लाइंस का लूप कंप्लीट नहीं किया. ऐसा ड्रॉ किया क्या मैंने यहाँ पे, ऐसा गया और ऐसा आया, नहीं. लेकिन इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल, बट अनलाइक इलेक्ट्रिक फील्ड दे फॉर्म क्लोज्ड लूप. तो ये पहला प्रॉपर्टी है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एट साउथ पोल. सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टी नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्टार्ट from north pole and end at south pole. Unlike
electric field lines magnetic field lines make closed loops. Closed loop बनेगा. This is what you need to know. Correct? Clear? Electric field lines में tangent at a given point was giving you direction of electric field. Electric force है electric field. दोनों एक ही बात है क्योंकि force is equal to field. वही किया था ना, F equal to E. दूसरे चार्ज को +1 कर दिया तो फोर्स ही बन गया E. मतलब जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का. तो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मतलब द tangent drawn at a given point on electric field line was giving you direction of electric field. यहाँ पे the tangent drawn at any point on magnetic field line will give you direction of magnetic field. So the tangent drawn at a point on the field line, on the magnetic field line, gives direction of magnetic field at that point. Right? Good. Then, as you know, as you have said, electric field lines do not intersect each other. Magnetic field lines also do not intersect each other. क्योंकि अगर intersect होते तो at the point of intersection magnetic field will have two directions. So magnetic field lines do not intersect each other. Right? Since at the point of intersection, magnetic field will have two different directions. It is not possible, of course, two different directions. तो ऐसा तो होगा नहीं. Then last property, last नहीं है लेकिन हमको जितना जरूरत है उसके हिसाब से last, because we will not go into much details of magnetic field lines. Do you remember crowding of field lines? मतलब magnetic field intensity is more, flux is more, मतलब field intensity is more. और जहां पे widely spread होगा वहां पे less है. So the strength of magnetic field is more where the field lines are crowded. And vice versa. मतलब इसका उल्टा भी ट्रू है. जहां पे फील्ड लाइंस वाइडली सेपरेटेड है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी मतलब स्ट्रेंथ कम है. तो दिस इज समथिंग बेसिक्स दैट यू शुड नो. अब बिफोर वी गो अहेड वी मस्ट डिफाइन व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स. तो अगर आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या था, मतलब एक रीजन था जहां पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो यू हैव अ रीजन वेयर यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. ये एक रीजन ऑफ स्पेस है वेयर यू हैव इलेक्ट्रिक फील्ड. और अगर मैं इस रीजन में एक एरिया लेता हूं, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास
through this given area A perpendicular to the area, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये एरिया को परपेंडिकुलर है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन एरिया नॉर्मली, मतलब परपेंडिकुलर टू द एरिया, इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को भी लिखना पड़ेगा, मतलब द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग, कौन से फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक फ्लक्स। वेरी गुड। अब प्रॉब्लम यह है कि नॉट नेसेसरली, हमेशा तो ऐसा होगा नहीं कि फील्ड लाइंस नॉर्मल ही हो। मैं फिलहाल एक फील्ड लाइन ले रहा हूं, बाकी का बाद में देखेंगे। तो मे बी द फील्ड लाइंस आर नॉट पासिंग नॉर्मली, दे आर मेकिंग सम एंगल। तो सबसे पहले आप इस केस में एरिया को वेक्टर बनाते हो। एरिया को वेक्टर बनाने के लिए एरिया का डायरेक्शन चाहिए। 11th का पहला चैप्टर, पहले चैप्टर में या फिर दूसरे चैप्टर में you have defined few physical quantities which are scalar quantities and few as vector quantities। और तो एरिया क्या था, एरिया स्केलर था, करेक्ट। अब लेकिन एरिया को वेक्टर बनाना है, डायरेक्शन चाहिए। फिर हम क्या करते हैं, एरिया को परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और उसको बोल देते हैं कि ये एरिया का डायरेक्शन। तो द डायरेक्शन ऑफ एरिया इज नथिंग बट नॉर्मल टू द एरिया इटसेल्फ। ओके, इसको बोलते हैं एरिया एलिमेंट। दिस इज एरिया वेक्टर बेसिकली। तो अब आप देख रहे हो कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है। फ्लक्स डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए था कि मैग्नेटिक फील्ड शुड पास नॉर्मली। हो रहा है क्या पास, नहीं। तो जब ऐसा होता है तो कंपोनेंट करने पड़ते हैं। तो एक कंपोनेंट यहां होगा, एक कंपोनेंट यहां जाएगा। ये क्योंकि एंगल को लग के है तो ये कॉस कंपोनेंट है और ये साइन कंपोनेंट है। साइन कंपोनेंट हमारे किसी काम का नहीं है फ्लक्स डिफाइन करते वक्त, क्योंकि फ्लक्स के डेफिनेशन में है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली। तो नॉर्मल कंपोनेंट देखना पड़ेगा बी कॉस थीटा। एंड एज आई टोल्ड यू, सिर्फ एक लाइन पास होगी क्या, नहीं, यू विल हैव मेनी सच लाइंस। तो व्हाट यू विल हैव इज मेनी सच लाइंस ओवर हियर, राइट। और हर एक लाइन का कंपोनेंट होगा, हर एक लाइन का एक कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, कॉस कंपोनेंट पास होगा। कहां से पास होगा, परपेंडिकुलर पास होगा एरिया को। तो यू विल हैव समथिंग लाइक दैट। तो फ्लक्स मतलब क्या, टोटल लाइंस पासिंग नॉर्मली, राइट। लेकिन इस रीजन में, पूरे रीजन में फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूस होने का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म तो है लेकिन कंटिन्यूस का मतलब कि ये पूरे एरिया में से ही लाइंस पास हो रहे हैं। तो यू हैव थ्रू आउट एरिया सच लाइंस। तो यू हैव जितना एरिया उतने लाइंस, इन शॉर्ट, राइट। व्हेन यू से इलेक्ट्रिक फील्ड इज, या फिर मैग्नेटिक फील्ड इन दिस केस, इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूस गैप नहीं है ना, गैप नहीं मतलब सारे के सारे लाइंस एक के बाद एक लग के है, मतलब उन सारे सबके सब कंपोनेंट्स भी लग के होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। तो कंटिन्यूअस होंगे तो टोटल फील्ड लाइंस एरिया से परपेंडिकुलरली पास होने वाला कितना होगा, बी कॉस थीटा इनटू एरिया इटसेल्फ। तो आपने क्या किया, एक लाइन इमेजिन कर ली, उसका कंपोनेंट देख लिया, लेकिन आप फिर बाद में बोल रहे हो लेकिन एक तो लाइन नहीं है ना, ये तो कंटिन्यूअस है। तो सारे के सारे कंटिन्यूअस फील्ड लाइन से कंपोनेंट्स, कौन से कंपोनेंट, बी कॉस थीटा कंपोनेंट, वो भी कंटिन्यूअस होंगे। तो एरिया में से कितना फ्लक्स पास हुआ, बी कॉस थीटा इनटू ए, इसको आप बोलते हो फ्लक्स। लेकिन कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो याद रखना, हम मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स की बात कर रहे हैं। देन अगर आपका वेक्टर्स का बेसिक्स क्लियर होगा तो आपको यह पता होगा कि ए बार डॉट बी बार क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो फिर यहां पे हमको जो दिख रहा है फ्लक्स, इट विल बी बी बार डॉट ए बार, क्योंकि यहाँ पे भी बी ए कॉस थीटा है, इसलिए बी बार डॉट ए बार। गुड, क्लियर यहां तक। देन बी from this equation is flux upon a cos theta. तो it is a cos theta, है ना।
डू यू नो, ये जो हमने फ्लक्स लिखा है इसका एसआई यूनिट क्या होता है? वेबर। SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, चाहे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो, इस वेबर, वाइबर नहीं वेबर, हैव टू बी लिटिल केयरफुल, राइट? दैट इज वेबर। वेरी गुड, वेबर। तो मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या आएगा? वेबर, और ये एरिया, एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर, इसको आप बोलते हो टेस्ला। टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड इज मेजर्ड इन टेस्ला, तो दिस वेबर पर मीटर स्क्वायर इज नोन एज टेस्ला, राइट? क्लियर? And SI unit of magnetic field thus is nothing but Tesla. So SI unit of magnetic field is Weber per meter square or Tesla. CGS unit पता है क्या है? CGS unit of B is गॉस। तो अब ये पता होना चाहिए कि एक टेस्ला मतलब कितने गॉस। हाउ मच इज 1 टेस्ला इन गॉस? 10 पावर 4। अब एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, हमें ये याद नहीं रहता कि 1 टेस्ला इज 10 पावर 4 गॉस या फिर 1 टेस्ला इज 10 पावर -4 गॉस, प्लस की माइनस याद नहीं रहता, याद रखना भी नहीं है। डू यू नो व्हाट इज SI यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। डू यू नो व्हाट इज CGS यूनिट? And how much is 1 centimeter in centimeter? Sorry, 1 meter in centimeters? 10 power 2. What is CGS unit of mass? CGS. And SI? How much is 1 kilogram in grams? Do you know what is 1 joule in erg? 77. How much is 1 Newton? Very good. What do you understand from this? No, positive index is okay. CGS unit is smaller and SI is bigger. तो टेस्ला क्या था? SI, और गॉस क्या था? हाँ, तो प्लस ही होगा ना। हाँ, तो ऐसा याद रखते हैं उसको। दिस इज द वे ऑफ रिमेम्बरिंग कन्वर्जेंस, क्योंकि CGS इज अ स्मॉलर यूनिट, तो इसलिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स आते हैं, क्योंकि ग्राम इज स्मॉलर। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेम्बर। तो नाउ देखो, स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर लाइंस वी आर मूविंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोगों ने फ्लक्स फील्ड लाइंस डिफाइन करने के बाद ही डिफाइन किया था। पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है वो पता होना चाहिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है वो पता होना चाहिए, उसके प्रॉपर्टीज पता होने चाहिए, देन यू डिफाइन व्हाट इज फ्लक्स। और उसके बाद अगर आपको याद होगा तो यू डायरेक्टली जंप टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इट्स प्रॉपर्टीज। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे बार मैग्नेट की, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल मतलब नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, वो किसमें होता है? बार मैग्नेट में होता है। तो हम पहले बेसिक पैरामीटर्स रिलेटेड टू बार मैग्नेट देख लेंगे। लेट अस टॉक अबाउट बेसिक पैरामीटर्स ऑफ अ बार मैग्नेट। तो आपको ऑब्वियसली पता ही है, वैसे यू ऑलरेडी नो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में देयर आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। और अभी हमने लिखा फील्ड लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ एंड एंड्स एट साउथ। डाइपोल के केस में फील्ड लाइन कहां से स्टार्ट हो रहा था? नहीं, इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में पॉजिटिव चार्ज से एंड कहां हो रहा था? नेगेटिव चार्ज। तो वहां पे जो प्लस क्यू था उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और जो माइनस क्यू था उसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल। एक पोल स्ट्रेंथ प्लस था, एक पोल स्ट्रेंथ माइनस है।
तो यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ ऑफ प्लस क्यू, क्योंकि कहां से स्टार्ट हुआ, और वहां पे प्लस से, इसको हम बोल देंगे प्लस क्यू। भाई चार्ज नहीं है ये पोल स्ट्रेंथ है। और क्योंकि मैग्नेटिक, आप किसकी बात कर रहे हो, मैग्नेट्स की, तो प्लस क्यू सफिक्स एम एंड माइनस क्यू सफिक्स एम। तो बार मैग्नेट is said to have pole strength of plus qm at north pole and minus qm at south pole। तो ये हो गया पहला इंपॉर्टेंट पैरामीटर, पोल स्ट्रेंथ, राइट। तो इफ you should remember a line passing through centers of both the charges was axis, लेकिन वो इलेक्ट्रिक डायपोल था तो इलेक्ट्रिक एक्सिस था। यहाँ पे a line passing through both the poles is called as magnetic axis। Then a line passing through center of dipole, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ बार मैग्नेट या फिर सेंटर ऑफ मैग्नेटिक डायपोल एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो ये आ गया मैग्नेटिक इक्वेटर। तो अभी तक आपने 3 इंपॉर्टेंट चीजें, पैरामीटर्स डिफाइन किया है। पोल स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल ऑफ अ मैग्नेट इज पोल स्ट्रेंथ, अ लाइन पासिंग थ्रू बोथ द पोल्स, मैग्नेटिक एक्सिस, अ लाइन perpendicular to magnetic axis passing through center of the magnet is called as magnetic equator। Then there is one thing that you should know is equatorial plane। You know what is plane? Plane, two-dimensional surface। अब imagine ये जो है, this is equator, magnetic equator, good। अब ये मैग्नेटिक इक्वेटर जिस प्लेन में होगा, ये इस प्लेन में है, बोर्ड के प्लेन में है, राइट। तो मैग्नेटिक इक्वेटर जिस प्लेन में होगा उसको हम बोलेंगे इक्वेटोरियल प्लेन। सो अ प्लेन कंटेनिंग व्हाट, मैग्नेटिक इक्वेटर इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल प्लेन। तो ये याद रखना, तो दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। तो अब एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये जो इक्वेटर है, दोज हु आर सिटिंग इन दिस क्लासरूम, ये जो बोर्ड का प्लेन है, मान लो x और z, तो एक्स जेड इज इक्वेटोरियल प्लेन। और जो ऑनलाइन देख रहे हो, आपके मोबाइल के स्क्रीन का जो प्लेन है या फिर लैपटॉप का जो प्लेन है, स्क्रीन का जो प्लेन है, दैट इज नथिंग बट इक्वेटोरियल प्लेन, क्योंकि उस प्लेन में आपके पास है मैग्नेटिक इक्वेटर, राइट। अब ये है हमारे पास मैग्नेटिक इक्वेटर, गुड। और ये जो प्लेन है, दिस इज इक्वेटोरियल प्लेन। अब इस इक्वेटोरियल प्लेन में आई विल टेक मेनी सच लाइंस, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सेंटर ऑफ द मैग्नेट, दिस इज सेंटर ऑफ द मैग्नेट। अगर मैं इक्वेटोरियल प्लेन में, कौन से प्लेन में, इक्वेटोरियल प्लेन में मैग्नेट के सेंटर से हर एक डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट लेता हूं, मतलब एक पॉइंट यहाँ, फिर यहाँ, इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ, सो फोर्थ, और इन सारे पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करता हूं, तो क्या मिलेगा, सर्कल। वेरी गुड। यू नो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ अ सर्कल? The locus of all points which satisfy a given geometrical condition x square plus y square equal to r square is a circle। तो ये भी तो locus of all the points है which are satisfying a given geometrical condition। क्या कंडीशन है? सारे के सारे पॉइंट्स का डिस्टेंस सेंटर ऑफ मैग्नेट से सेम है, इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल सर्कल। इक्वेटोरियल प्लेन, फिर इक्वेटोरियल सर्कल। The locus of all the points in equatorial plane which are equidistant from the center of the magnet is called as equatorial circle। Good। Then अब क्या रह गया, और क्या डिफाइन करना है रिलेटेड टू दिस? और एक दो प्रॉपर्टीज है, कर लेते हैं डिफाइन इसके। तो अगला क्या था, व्हाट वाज द नेक्स्ट थिंग? मैग्नेटिक लेंथ एंड ज्योमेट्रिक लेंथ। वेरी गुड।
तो यू सी ये जो नॉर्थ से साउथ पोल तक का डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ मैग्नेट इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक लेंथ। अब आपको मैंने ऑलरेडी बताया ये L और ये N, तो मैग्नेटिक लेंथ कितना होगा 2L। और एज यू कैन सी फ्रॉम डायग्राम एक्चुअल लेंथ ऑफ द मैग्नेट ये ज्यादा है कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मतलब एक्चुअल लेंथ इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक लेंथ। इस एक्चुअल लेंथ को हम लोग बोलते हैं ज्योमेट्रिक लेंथ, राइट। तो इसका मतलब पोल्स जो है मैग्नेट के वो थोड़े अंदर है, राइट। So the actual length of magnet is called as geometric length, and the distance between north pole and south pole of the magnet is called as magnetic length. तो इसका मतलब यहां से यहां तक ये डिस्टेंस हो गया geometric length GL। तो अब आपको चाहिए रिलेशन बिटवीन GL एंड ML। तो मैग्नेटिक लेंथ ML which is 2L, 2 times of small l, is 5/6 ज्योमेट्रिक लेंथ, राइट। या फिर आप उल्टा भी लिख सकते थे, आप बोल सकते थे GL is 6/5 ml, राइट। तो ये पता होना चाहिए कि इस केस है दिस इज वेयर इट इज डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का लेंथ जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज जितना ही है। यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज का डिस्टेंस आप बोलते हो मैग्नेटिक लेंथ, और एक्चुअल लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट को बोलते हो ज्योमेट्रिक लेंथ। So geometric length is greater, इसलिए geometric length is 6/5 of magnetic, क्योंकि 6/5 is a greater number greater than 1, या फिर magnetic length is 5/6 of geometric length. Last thing which you have to relate between electric dipole and magnetic dipole, हमने एक dipole moment नाम का पैरामीटर डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमने डिनोट किया था P से, लिखा था Q into 2L, और ये था vector quantity which was directed from negative charge to positive charge। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट डिनोटेड बाय M, चार्ज की जगह पे पोल स्ट्रेंथ, और यहाँ पे ये 2L, करेक्ट, राइट, डायरेक्टेड फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। गुड, so that's it for today, more in the next session।